بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں 9ویں جماعت کے اردو کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات ہوگی کہ 9ویں جماعت کے اردو کے پیپر میں سوالات کتنے ہوتے ہیں اور وہ کس طرز کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے معروضی حصہ۔ 9ویں جماعت میں معروضی حصہ جو ہے وہ 15 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 15 نمبر کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 7 سوالات حصہ نثر میں سے ہوتے ہیں اور 2 سوالات حصہ نظم میں سے اور 1 سوال حصہ غزل سے اور 5 سوالات جو ہیں وہ گرامر سے۔ تو اس طرح سے 15 سوالات ہیں، ایم سی کیوز ہیں۔ 5 سوالات جو گرامر سے ہیں ان میں بھی واحد جمع، متضاد، مترادف، مذکر، مؤنث، یہ ایک سوال ان کے حوالے سے ہوتا ہے۔ واحد جمع کا ایک متضاد کا، ایک مترادف کا اور ایک مذکر مؤنث کا۔ تو اس طرح سے یہ 15 نمبر معروضی کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد معروضی کے بعد جو انشائی حصہ ہے اس میں اردو کا جو دوسرا سوال ہے وہ اشعار کی تشریح ہے۔ اشعار کی تشریح میں یہ 7 اشعار دیے جاتے ہیں جن میں حصہ نظم میں سے 4 اشعار ہیں اور حصہ غزل میں سے 3 اشعار ہیں۔ 7 اشعار ہوتے ہیں لیکن ان میں سے آپ نے 5 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ حصہ نظم کے 4 اشعار دیے گئے ہیں جن میں سے 3 اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے اور حصہ غزل میں سے 3 اشعار جو دیے گئے ہیں ان میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنا ہے اور ہر شعر کی تشریح جو ہے اس کے 2 نمبر ہیں اور اس طرح 5 اشعار کی تشریح کے 10 نمبر ہوں گے۔ لیکن اس میں یاد رہے کہ 4 اشعار جب نظم سے دیے تو وہ چاروں کر کے ایک آپ غزل سے کر دیں تو 5 اشعار پورے کر لیں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ حصہ نظم میں سے 3 اشعار کرنے ہیں اور حصہ غزل میں سے 2 اشعار کرنے ہیں، تو اس طرح 3 اور 2 ملا کر 5 اشعار کی تشریح ہوگی اور یہ 2 نمبر کی تشریح ہے ہر ایک شعر کی اور کل 10 نمبر ہیں حصہ اشعار کی تشریح کے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے، تیسرا سوال نثر پارے کی تشریح کا ہوتا ہے۔ یہ نثری اسباق میں سے 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں، 2 اقتباس دیے جاتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں ہی اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ لیکن تشریح میں پیراگراف کی تشریح کے ساتھ ساتھ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام اور اس کے ساتھ خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھے جاتے ہیں۔ ان میں اس طرح ہے کہ مصنف کا نام اور سبق کا عنوان اس دونوں کا 1 نمبر ہے اور جو خط کشیدہ الفاظ ہیں اس پیرے میں یہ 4 الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی لکھنے ہوتے ہیں اور اس طرح یہ 2 نمبر خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ہوتے ہیں، تو ایک پیراگراف جو ہے وہ 5 نمبر ہیں اور اسی طریقے سے دونوں پیراگراف جب کیے جائیں گے تو دونوں کے 10 نمبر ہو جائیں گے۔ تو گویا سوال نمبر 3 کے جو کل نمبر ہیں وہ 10 ہیں اور اس میں جو ترتیب ہے آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ سبق کا عنوان جو ہے وہ یہ آدھا نمبر ہے اس کا، جسے میں نے 0.5 اور مصنف کا نام یہ بھی 0.5، یعنی اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی جس کے 2 نمبر ہیں، تو اس طرح یہ 3 نمبر مکمل ہوئے اور تشریح کے جو ہیں وہ 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک پیراگراف جو ہے وہ 5 نمبر پر مشتمل ہے اور 2 پیراگراف یعنی مکمل سوال جو ہے اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 جو ہے یہ سوالات کے مختصر جوابات ہیں۔ یہ 8 سوالات دیے جاتے ہیں جن میں سے 5 سوالوں کے مختصر جوابات لکھنے ہیں اور ہر مختصر جواب 2 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اور اس طرح
मुकम्मल 5 सवालों के 10 नंबर होते हैं, यानी ये सवाल 10 नंबर पर मुश्तमिल है। ये जो 8 सवालात दिए जाते हैं, इनमें भी एक ख़ास तरतीब होती है कि इनमें से जो 5 सवालात हैं वो तो नसरी असबाक में से होंगे और 2 सवालात जो हैं वो नज़्म में से होंगे, हिस्सा नज़्म में से, और एक सवाल हिस्सा गज़ल में से होगा। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि कौन से आपने 5 करने हैं। आप नसरी असबाक के ही सारे 5 के 5 सवाल कर लें तो तब भी ठीक है। 3 जो हैं, एक गज़ल का, 2 नज़्म के 3 और 2 जो हैं वो नसरी में से कर लें, तो 5 सवाल टोटल आपने करने हैं। उसमें से जो आपकी अपनी चॉइस है उसमें से आप कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तसर जवाबात जो हैं ये 10 नंबर का सवाल होता है और ये सवाल नंबर 4 है। इसके बाद सवाल नंबर 5 देखें। सवाल नंबर 5 जो है ये सबक का ख़ुलासा है। सबक के ख़ुलासे में ये 2 असबाक दिए जाते हैं, उसमें से आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा सबक आप उसमें से मुंतखब करते हैं ख़ुलासा लिखने के लिए। आप इसमें से एक सबक का ख़ुलासा तहरीर करेंगे, उसके साथ ही मुसन्निफ़ का नाम भी लिखेंगे और इसके 5 नंबर होते हैं। सबक का ख़ुलासा 5 नंबर का है। इसके बाद सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 वो नज़्म का ख़ुलासा तहरीर करना है। आपकी जो निसाबी नज़में हैं उनमें से एक नज़्म दी जाएगी, उसका ख़ुलासा लिखना है और इस सवाल के नंबर भी 5 होते हैं। इसमें साथ एक चीज़ ये भी ऐड कर लें कि नज़्म का ख़ुलासा या फिर नज़्म का मरकज़ी ख़्याल, दोनों में से एक आपने तहरीर करना है। या नज़्म का ख़ुलासा लिखेंगे और या फिर मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ नज़्म का ख़ुलासा इसके हवाले से ही यहाँ तहरीर किया है, सवाल बनाया है, और बेहतर भी यही होता है कि मरकज़ी ख़्याल की बजाय आप नज़्म का ख़ुलासा लिखें। उसकी क्या वजूहात हैं वो जब मैंने पेपर हल करने का तरीका इससे अगले वाली वीडियो में जब बयान करूँगा तो उसमें बताऊँगा कि इसमें क्या मंतक है कि नज़्म का ख़ुलासा तहरीर करना चाहिए और मरकज़ी ख़्याल की बजाय इसमें ज़्यादा नंबर आते हैं। और तो इस तरह ये सवाल नंबर 6 है, इसके 5 नंबर होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 जो है वो ख़त और दरख्वास्त पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों ही पेपर में आते हैं, ख़त भी और दरख्वास्त भी, लेकिन इसमें तालिब इल्म की सवाबदीद है कि वो ख़त लिखना चाहता है या दरख्वास्त। गोया इसमें आपने एक लिखना है, ख़त लिखना है या दरख्वास्त। और ये सवाल जो है सवाल नंबर 7, ये इसके 10 नंबर होते हैं। इसमें आप ख़त लिखेंगे या फिर दरख्वास्त लिखेंगे, दोनों ही पेपर में आए होते हैं और दोनों के दरमियान में या की ऑप्शन होती है। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो है इसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक कहानी या फिर मुकालमा। कहानी और मुकालमा दोनों ही पेपर में दिए हुए होते हैं और इनके दरमियान में या होता है, यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप कहानी लिखें या मुकालमा लिखें। तो ये सवाल जो है ये 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है और ये पेपर का सवाल नंबर 8 है, यानी कहानी भी और मुकालमा भी दोनों ही आते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 में भी 2 चीज़ें हैं, एक जुमलों की दुरुस्ती और दूसरा है जुमलों को मुकम्मल करना। ये भी दोनों ही आते हैं। 5-5 इसमें जुमले होते हैं जिनको आपने अगर जुमलों की दुरुस्ती में हो तो जुमले दुरुस्त करने हैं और अगर जुमलों की तकमील में आए तो वो जुमला मुकम्मल करना होता है। तो इसमें भी आपकी अपनी सवाबदीद है, आपको इख्तियार है कि जुमलों की दुरुस्ती वाले सवाल को आप मुंतखब करते हैं या फिर जुमलों को मुकम्मल करना। अब ये जुमलों की दुरुस्ती ये कहाँ से वो जुमले आते हैं और जुमलों को मुकम्मल करना ये जुमले कहाँ से आते हैं, ये मैं आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि आपकी जो किताब है क़वाइद व इंशा,
उन उसके कौन से सफ़ात पर इसका मवाद मौजूद होता है कि जिसमें से ये जुमले दुरुस्त करने के लिए आते हैं और जुमलों को मुकम्मल करने वाला सवाल जो है वो मुरतब किया जाता है। तो इस तरह 5 नंबर ही इसके होते हैं। तो टोटल 9th का जो उर्दू का पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है, 75 मार्क्स हैं, जिसमें से 15 नंबर जो हैं वो मारूज़ी के हैं और इस तरीके से 60 नंबर जो हैं वो इंशाइया के हैं। और उसकी तरतीब मैंने आपको बता दी। ये 9 सवाल होते हैं बशमूल मारूज़ी के। एक मारूज़ी का सवाल है और 8 सवाल जो हैं इस इंशाइया में हैं, तो ये कुल 9 सवालात बन जाते हैं। इसका जो पेपर हल करने का तरीक़ाकार है कि वो किस तरीके से हम अपने पेपर को प्रेजेंट करें, किस तरह सवालों के जवाबात को हम पेश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल किए जा सकें, वो मैं इसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर तफसील से बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो जो है आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।